Good morning to all. We are starting with the instruction set of 8085. Then I'll let you know about the examples of the programs which are done in 8085. Then we'll study the addressing modes of 8085, and at the end we'll study the instruction and the data formats which are used in 8085. So beginning with the instruction set of 8085. So in 8085 we have in total we have 74 operation codes which we call as in the short form we call it opcode. So as I already told you that when we are writing an instruction, we have two parts in instruction. One is your opcode, another is your the opcode, and the other one are your operands, right? So operands are the ones, the numbers which are stored in either in registers or directly we can have a number. Those are our operands. And then we have a opcode. Opcode means whatever operation we want to carry out. Okay. So in total in 8085 we have 74 opcodes and 246 instructions we have in 8085, right? Now if we classify the instruction in 8085, we have 5 types of instruction in 8085. One is your data transfer, means when we are copying from one register to register, or we are copying from memory to register, or any other data transfer operation. Then is your arithmetic operation, means whatever arithmetic operations that can be carried out in the 8085 like addition, subtraction, and so on. Then are the logical and bit manipulation, in which we do the logical and or all these operations. Then comes the branching operation. Branching means when we in which we use the branch instructions. For example, jump instruction, in which we jump from one part of the program to the another part of program we want to jump, right? So these are the branching instructions. Then comes the machine control, which are basically used by the machine for, maybe there is example of halt instruction. Halt instruction is used for stopping the program at one point, right? We can use the halt instruction. Now about the data transfer instructions, if we see the first instruction, now what type of operations we can carry out basically in data transfer. Like we have to copy the data. First of all, if I say, the first thing is loading a 8-bit number in a register. If I want to load a 8-bit number in a register, okay, this is a type of data transfer operation, right? Okay, that I have some 8-bit number and I have to store it in some register. Okay, for there I need a data transfer instruction, right? Then if I want to copy a data from register to some another register, right? And if I want to copy the data which is in a register to some memory, then if we want to copy some data between the input output ports or the accumulator, there we'll need the data transfer operations. Then if I want to load a 16-bit number in some register pair will, as we have studied, we have 3 types of register pairs: BC, DE and HL. So all these are the register pairs. Agar 8-bit number hai, there we need a single register. If we have a 16-bit number, we need a register pair. We can select any of the register pair out of these. Then if we have to copy between a register pair and the stack memory. Okay, so for these carrying out all these data transfer operations, we need some particular instruction in 8085, right? So now I am explaining one by one the data transfer instructions. For example, if I want to load a 8-bit number to some register B, ठीक है, अगर कोई 8-bit number है, ठीक है, सपोज 4F आपका 8-bit नंबर था, इसे आपने रजिस्टर बी में मूव करना है, ठीक है. फॉर दैट क्या इंस्ट्रक्शन यूज होगी? MVI इंस्ट्रक्शन यूज होगी. उसके बाद MVI के बाद व्हाट विल राइट द नेम ऑफ द रजिस्टर जहाँ पे हमने इस कंटेंट को मूव करना है, कॉमा जिस कंटेंट को आपने मूव करना है. आपने 4F को मूव करना था. H इज फॉर डिफाइनिंग कि एक हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है. दिस इज नॉट द कंटेंट, दिस इज बेसिकली डिफाइनिंग इट कि जो 4F है वो एक हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है. तो MVI is an instruction which is used for loading some data into some register, ठीक है. अगर आपने second one is copying from register B to register A. अब अगर आपने कंटेंट डायरेक्टली मूव करना था, ठीक है, आपने किसी नंबर को मूव करना था, वहां पे आप यूज कर रहे थे MVI. फुल फॉर्म ऑफ MVI इज मूव इमीडिएट.
अगर आपने किसी रजिस्टर के कंटेंट को दूसरे रजिस्टर में कॉपी करना है, देयर यू विल यूज द MOV, मूव। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू डिफरेंशिएट कि कहाँ पे MVI यूज करना है और कहाँ पे MOV इंस्ट्रक्शन यूज करनी है। मूव कहाँ पे हम यूज करेंगे, जहाँ पे हम एक रजिस्टर से रजिस्टर में डेटा डाल रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे हम डायरेक्टली, हमारे पास नंबर नहीं है, कोई डेटा नहीं है, हमारे पास रजिस्टर्स हैं, एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में डालना है, एक रजिस्टर से किसी मेमोरी में डालना है, वहाँ पे हम मूव यूज़ करेंगे। लेकिन जहाँ पे हम डायरेक्टली डेटा से कनेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास डेटा है, इस डेटा को स्टोर कर दो इस रजिस्टर में, वहाँ पे हम मूव MVI यूज़ करेंगे, मूव इमीडिएट यूज़ करेंगे। ठीक है, सो अगर आपने रजिस्टर B से किसी कंटेंट को A में डालना था तो हम यूज़ करेंगे मूव A, B। तो हमारा जो डेस्टिनेशन है वो पहले आएगा और उसके बाद आपका सोर्स रजिस्टर आएगा। ठीक है जी। थर्ड वन इज लोडिंग अ 16-bit नंबर इनटू अ रजिस्टर पेयर। ठीक है, अब अगर तो 8-bit नंबर को स्टोर करना था, लोड करना था, देयर वी हैव यूज द MVI कमांड और हमने रजिस्टर का नाम लिख दिया। अगर अब आप रजिस्टर पेयर में आपने डालना है अ 16-bit नंबर, तो आपने क्या यूज करना है, कमांड LXI कमांड विल बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग अ 16-bit नंबर। ठीक है, और अगर हम पेयर की बात करें तो अगर आप HL पेयर यूज करोगे देन यू विल राइट हियर H। ठीक है, द फर्स्ट लेटर ऑफ द रजिस्टर पेयर। ठीक है, अगर HL यूज कर रहे हो तो H लिखोगे, अगर BC यूज कर रहे हो तो B लिखोगे यहाँ पे, अगर DE यूज कर रहे हो तो D लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, सो दिस विल टेल कि LXI का मतलब है रजिस्टर पेयर। ठीक है, अगर आपने H लिख दिया तो डेफिनेटली ये अपने आप इस चीज़ को इट विल अंडरस्टैंड कि यू आर टॉकिंग अबाउट HL पेयर। ठीक है, और उसके बाद जो भी आपका कंटेंट है जिसे आपने स्टोर करना है इनटू द रजिस्टर पेयर। ठीक है, देन इज कॉपिंग फ्रॉम रजिस्टर B टू मेमोरी एड्रेस 2050। अगर आपने किसी भी कंटेंट, जो रजिस्टर का कंटेंट है, उसे किसी मेमोरी एड्रेस में कॉपी करना है, ठीक है, देन यू विल यूज द कमांड मूव फ्रॉम सम रजिस्टर B टू M। आई एम मूविंग एक रजिस्टर से किसी मेमोरी लोकेशन में मूव। यू आर नॉट डायरेक्टली डीलिंग विद द डेटा, यू आर डीलिंग विद अ रजिस्टर एंड अ मेमोरी लोकेशन। तो कौन सी कमांड यूज करेंगे, मूव कमांड यूज करेंगे। देन कम्स द कॉपी बिटवीन इनपुट आउटपुट पोर्ट एंड एक्यूमुलेटर। अगर आपने अब अपने कोई आउटपुट पोर्ट पे भेजना है डेटा, यू विल यूज द आउट। अगर आप इनपुट ले रहे हो कोई, यू विल यूज द इन कमांड। उसके बाद जो भी आपका कंटेंट है वो आपको लिखना है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कॉपी द डेटा बिटवीन द इनपुट आउटपुट पोर्ट एंड द एक्यूमुलेटर। अब बेसिकली जब आप आउट लिखोगे ना, इट विल मूव टू द आउटपुट पोर्ट। इन लिखोगे 07H, इट विल बी कॉपीड टू द एक्यूमुलेटर ओनली, क्योंकि फर्स्ट जो आपका ऑपरेंड है इट ऑलवेज गोज टू द accumulator right. Next comes the arithmetic operations. Now in total we have 3 type of arithmetic operations. First is your addition, then is your subtraction, and third one is your increment and decrement, right. अब 3 तरह के arithmetic operations हैं. Now if I go for the examples, if I see, अगर आपने अब addition करनी है, ठीक है, एडिशन अब आप हो सकता है कि आपका जो फर्स्ट ऑपरेंड है इट इज़ लाइंग इन द एक्यूमुलेटर ओनली। अब आपने एक नंबर दे दिया, ठीक है, उस नंबर को आपने ऐड करना था टू द एक्यूमुलेटर। फर्स्ट थिंग, एडिंग ए 8-bit नंबर टू अ एक्यूमुलेटर। ठीक है, तो उसके लिए आप कौन सी कमांड यूज़ करेंगे, ADI। ठीक है, ऐड इमीडिएट। ठीक है, कि फर्स्ट कंटेंट जो है ऑलरेडी आपका एक्यूमुलेटर में पड़ा हुआ है, उसे आपने ऐड कर देना, उसमें एक नंबर ऐड किया और जो भी रिजल्ट आया उसे वापस आपने स्टोर कर दिया एक्यूमुलेटर में। ठीक है, बिकॉज फर्स्ट ऑपरेंड इज ऑलवेज लाइंग इन द एक्यूमुलेटर एंड रिजल्ट इज ऑलवेज स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर। ठीक है, अगर आपने अब ये तो फर्स्ट केस हो गया जहाँ पे आपका जो फर्स्ट नंबर है वो आपने डायरेक्टली एक्यूमुलेटर में ऐड करना था। अगर आपका जो अब सेकेंड है कि अगर आपका जो कंटेंट है इट इज़ लाइंग इन सम रजिस्टर, ठीक है, और उसे आपने ऐड करना था टू द एक्यूमुलेटर, तो वहाँ पे आप यूज़ करेंगे कौन सी कमांड, ऐड। ठीक है, सो इसका अगर फुल फॉर्म देखें तो A+B हो जाएगा कि B का कंटेंट ऐड हो जाएगा A रजिस्टर में और रिजल्ट कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, वापस टू द एक्यूमुलेटर। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने सब्ट्रैक्ट करना है कोई 8-bit नंबर, ठीक है, फ्रॉम द एक्यूमुलेटर, ठीक है, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे SUI, सब्ट्रैक्ट इमीडिएट। ठीक है, सेम है जैसे आपने वहाँ पे मूव किया था, मूव इमीडिएट कर रहे थे। अगर आप डायरेक्टली कंटेंट के साथ जाओगे देन यू विल यूज़ द
MVI, ADI, SUI इमीडिएट यूज़ करोगे. अगर आप किसी रजिस्टर के साथ डील करोगे देन यू विल यूज़ डायरेक्टली मूव, ऐड, सब्ट्रैक्ट. ठीक है. अब SUI मतलब एक्यूमुलेटर्स में से आपने इस कंटेंट को माइनस करना था एंड यू हैव टू पुट द रिजल्ट बैक टू द एक्यूमुलेटर. ठीक है. देन सिमिलरली अगर आपका कंटेंट अगर रजिस्टर में पड़ा हुआ है उसे आपने माइनस करना है एक्यूमुलेटर से, तब आप यूज़ करेंगे सब्ट्रैक्ट. ठीक है. तो मतलब एक्यूमुलेटर से रिजल्ट जो माइनस कर दिया आपने एक्यूमुलेटर में से किसे, जो सी रजिस्टर में पड़ा हुआ था एंड यू हैव स्टोर्ड बैक टू द एक्यूमुलेटर. देन इज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट. अगर आपने किसी भी रजिस्टर के डेटा को इंक्रीमेंट करना है बाय 1 यू विल राइट INR D. तो मीन्स आउटपुट विल बी D इक्वल टू D+1. अगर डिक्रीमेंट करना है मीन्स आपने इस रजिस्टर में से 1 माइनस कर दिया. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द अरिथमेटिक ऑपरेशंस. नेक्स्ट कम्स द लॉजिकल एंड बिट मैनिपुलेशन ऑपरेशंस. अब लॉजिकल ऑपरेशंस में हमारे पास आ जाते हैं एंड, और, जोर, कंपेयर, कॉम्प्लीमेंट एंड रोटेट. तो रोटेट जो है वो लेफ्ट भी हो सकता है और राइट भी हो सकता है. ठीक है. अब एग्जांपल्स की बात करें तो अगर आपने लॉजिकल एंड करना है बिटवीन अ रजिस्टर H एंड द एक्यूमुलेटर. ठीक है. तो व्हाट वी विल राइट हियर ANAH. ठीक है. अब यहाँ पे आप एंड ऑपरेशन लगा रहे हो किस पे, आपने एक्यूमुलेटर के साथ एंड ऑपरेशन लगाया है H का. H में जो भी डेटा पड़ा हुआ था उसे आपने एंड ऑपरेशन कर दिया किसके साथ, A के साथ, और वापस जो रिजल्ट किस में स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में. इट विल कम बैक टू द एक्यूमुलेटर ओनली. ठीक है. अगर आपने लॉजिकल और यूज करना है फॉर देयर यू विल यूज द कमांड ORA. ठीक है. तो जो फर्स्ट कमेंट कंटेंट ऑपरेंड है इट इज लाइंग इन सपोज A एक्यूमुलेटर, और उसके साथ आपने और ऑपरेशन परफॉर्म किया है विद दी L. ठीक है. तो उसका मतलब अगर आप ये चीज़ लिख रहे हो ORAL तो इसका मतलब क्या है वो मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ. लिखना आपने इसी तरह से है इस इंस्ट्रक्शन को. तो ORAL का क्या मतलब है कि आप एक्यूमुलेटर में स्टोर कर रहे हो. क्या स्टोर कर रहे हो, एक्यूमुलेटर का जो डेटा था उसे आप उसके साथ और ऑपरेशन परफॉर्म किया किसके साथ, L रजिस्टर में जो कंटेंट पड़ा था. इन दोनों को और ऑपरेशन परफॉर्म किया और किस में स्टोर कर दिया, वापस A में. ठीक है. तो इस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग इज दिस. ठीक है. देन कम्स द जोर ऑपरेशन. अगर आपने किसी रजिस्टर और एक्यूमुलेटर में जोर ऑपरेशन परफॉर्म करना है सो मीन्स आप क्या लिखेंगे, XRA B. XRA B लिखने का क्या मतलब है, XRA B लिख दिया मतलब कि एक्यूमुलेटर में क्या स्टोर हो रहा है, जोर B. ठीक है. तो A और B रजिस्टर का आपने आपस में जोर किया और रिजल्ट कहाँ पे स्टोर कर दिया है, A रजिस्टर में. देन इज योर कंपेयर. अगर आपने कंपेयर करना है कंटेंट ऑफ रजिस्टर C विद एक्यूमुलेटर. ठीक है. कंपैरिजन करना है कि अगर A में डेटा पड़ा था 1111 और C में था 1111, दोनों को कंपेयर करना है कि क्या ये इक्वल है, येस और नो. ठीक है. यू विल गेट अ वैल्यू इन ट्रू और फॉल्स. ठीक है. ट्रू मीन्स 1, फॉल्स मीन्स 0. यू हैव टू पुट इट इन 0 एंड 1 फॉर्म. तो कंपेयर किया है आपने, तो कंपेयर C मतलब एक्यूमुलेटर को आप कंपेयर कर रहे हो C के साथ, क्या ये बराबर हैं या नहीं है. तो अगर बराबर होंगे तो ट्रू आ जाएगा, 1 आ जाएगा, नहीं होगा तो 0 आ जाएगा, फॉल्स. किस में आएगा रिजल्ट, वापस इन द एक्यूमुलेटर. देन इज कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर. कॉम्प्लीमेंट मीन्स 1 को 0 कन्वर्ट कर दिया, 0 बिट को 1 कन्वर्ट कर दिया. अगर आपके पास सपोज कोई 1010 डेटा था, आपने इसे कॉम्प्लीमेंट कर दिया 0101. ठीक है. तो कॉम्प्लीमेंट करना अगर एक्यूमुलेटर को, यू विल राइट CMA. ठीक है. CMA का मतलब क्या है, दैट यू आर कॉम्प्लीमेंटिंग द कंटेंट इन द एक्यूमुलेटर. ठीक है. देन इज रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट. सपोज एक्यूमुलेटर में डेटा पड़ा था 1010. लेफ्ट का मतलब क्या है कि आपने सभी बिट्स को लेफ्ट रोटेट कर देना है, लेफ्ट मूव कर देना है इन दिस वे. ठीक है. तो अगर आपका कंटेंट था 1010 तो ये क्या बन जाएगा, 1 बिट पीछे आ गई. ठीक है. इट विल बिकम 0101. ठीक है. तो लेफ्ट रोटेट कर दिया आपने एक्यूमुलेटर की जो बिट्स थी. ठीक है. अगर राइट कह रहा है, अगर 1010 था तो आपने सभी बिट्स को राइट मूव कर देना है. ठीक है. इट विल गो लाइक दिस. ठीक है. देन इट विल बिकम व्हाट, 01
0 आ गया, 1 0 1, ठीक है। तो चाहे इसे लेफ्ट रोटेट कर लो चाहे राइट रोटेट कर लो, सेम आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से सो दिस इज दीज आर ऑल द लॉजिकल ऑपरेशंस, ठीक है। ऐड और जोर कंपेयर कॉम्प्लीमेंट एंड दी रोटेट ऑपरेशन, ठीक है जी। Next are the branching operations. Branching operations are basically which are used to control the flow of program execution, ठीक है। जिसमें आप flow देखते हैं कि प्रोग्राम का अगर आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, यू वांट टू, एक ऑलरेडी चल रहा था फ्लो आपका, आपने अब उसे जैसे आप सी लैंग्वेज में करते थे, यू यूज टू यूज़ फॉर लूप, यू यूज टू यूज़ इफ एल्स लूप, यूज टू यूज़ स्विच लूप, है ना। तो इसी तरह से आप यहाँ पे अगर आपने कंट्रोल करना है फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, यू कैन यूज़ टू type of operations here. Either you can use jump or you can use the call and return, ठीक है। तो jumps में हमारे पास कुछ conditional jumps हो सकती हैं या unconditional हो सकती हैं। Similarly in call and return we can have conditional और unconditional call and return, ठीक है। So this is all for today. इसकी explanation we'll do in the next lecture, ठीक है जी। Thank you so much.